Namaskar student. So continue this chapter from class 10th federalism. In previous lecture I have explained about what is federalism and what is the types of federalism, coming together and holding together federalism. And today's topic is threefold distribution of powers within the state government and central government. So mainly threefold system में legislative power. We will discuss about the legislative power in which government has some subjects in which they can make law, and it is already clear distributed according to the constitutions. All powers the central government and state governments gain from the constitution. These all things written in constitution. So first I am telling about the union list. Fine. So what is the union list? There is three lists: union list, the state list and the concurrent list. Fine. Union list, central list कह सकते हैं, state list and concurrent list. So first I am telling about the union list. How many subjects are there? 97 subjects are there, in which the union government has power to make the law. They have no need to ask to any form of governments regarding these matters. What are subjected? Some subjected I have mentioned like defense. Defense related issues is related to the national level. So defense, foreign policies, दूसरी countries के साथ relations है, banking, post and telegraph. These are some common subjects in which the only union government can pass law on these subjects. सिर्फ गवर्नमेंट के पास. फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे बात लेते हैं डिफेंस की बात लेते हैं, तो वी कैन द एग्जाम्पल सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो ये डिसीजन किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि किस लिस्ट में आ रहा है? यूनियन लिस्ट में. बैंकिंग का ले लीजिए एग्जाम्पल. अभी करेंसी चेंज, इसमें करेंसी भी आप ऐड कर सकते हैं ना, बैंकिंग में आ जाएगा. करेंसी में जो चेंज हुआ था, नई करेंसीज हुई थी, तो वो डिसीजन भी किसका था? यूनियन. यहाँ पर इनको इस लिस्ट में, इन सब्जेक्ट्स में दे हैव नो नीड टू आस्क द स्टेट गवर्नमेंट. फाइन. So independently central government is responsible and can make the law. Second list is the state list. Now what is the state list? According to their name, जितने भी states हैं, सभी states के पास कुछ powers होते हैं ना. तो powers जो है कौन कौन से, कितने सब्जेक्ट इसमें? 59. देखिए इसमें कितने थे? 97, 59 सब्जेक्ट्स आते हैं. अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? पुलिस, जो हमारी स्टेट पुलिस होती है, ट्रेड, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर इन स्टेट. स्टेट में जितने भी मैटर्स है पुलिस के, ट्रेड के, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, दीज ऑल कम इन द स्टेट लिस्ट. ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लॉ, यानी कि इनसे रिलेटेड जो स्टेट में जो भी ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद के लॉ बना सकती है. दे नो नीड टू आस्क द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पर भी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होती है जिसे हम इलेक्ट करते हैं. So these powers given by the constitution. Next is the concurrent list. Now what are the subjects which both are responsible for making law? Central government as well as state government. So it has 47 subjects. Fine. Both central and state make the law. दोनों बना सकती है. कौन कौन से कुछ examples लिखे? Like education, forest, trade, ट्रेड यूनियन, मैरिजेस, अडॉप्शन, सक्सेशंस, ये भी आता है इसमें. सो दीज आर द सम सब्जेक्ट्स इन व्हिच द ओनली दोनों है ना, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ आर रिस्पॉन्सिबल. बट इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट इज देयर, एनी issues is there, so the weightage of the central government is more. किसके डिसीजन को वेटेज दिया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है तो. ठीक. नाउ वन मोर सब्जेक्ट इज द रेजिडुअरी सब्जेक्ट. आई विल एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू योर बुक. Residuary subjects are the subjects which were not mentioned in the constitution just because that time that subjects were not there. जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म हुआ तो वो सब्जेक्ट थे ही नहीं. जैसे अभी हम कम्युनिकेशन ले लीजिए, आपका नेटवर्किंग है, उस वक्त ये सब्जेक्ट नहीं थे. तो ऐसे सब्जेक्ट जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ और नहीं थे, तो उन सब्जेक्ट्स को हम किस में लेते हैं? रेजिडुअरी सब्जेक्ट. नाउ व्हाट आर द रेजिडुअरी सब्जेक्ट? अब इसमें किसके पास पावर है? तो ऑल रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स आर with
सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, अब वो इन पर क्या बना सकती है, लॉ रूल बना सकती है, कोई भी डिसीजन ले सकती है। फाइन। सो अगेन लेजिस्लेटिव पावर, थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड concurrent list. These are some subjectives. Total subjectives are given. Union list, only central government is responsible to making law. State government, only state government make the law. Concurrent, both are responsible, central as well as state government. Fine. And auxiliary subject is with the only union list, it means central government. So according to book I am explaining the chapter. So students, let's start the threefold distribution of power in the sense of the federalism. In previous section I have explained about the federation, what is federation, this definition we have done, and next topic was the in which countries the federations are mostly found, and the key features of the federalism. This topic we have done, the 7 key features we have done. So next was the types of the federations. There were coming together federation, and next was the holding together federalism. So these topics we have discussed. Now continue this topic according to your NCERT book. There is a definition given of the jurisdiction. I am explaining this. What is the meaning of jurisdiction? Now, in this sense, the area over विच समवन इज़ लीगल अथॉरिटी, कुछ ऐसे एरिया जिसके अंतर्गत या जिसके इंक्लूडिंग किसी के पास कुछ लीगल अथॉरिटी आती है. द एरिया में बी डिफाइन इन द टर्म ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्रीज और इन द टर्म ऑफ सर्टन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट. यानी कि देखो यहाँ पे लीगल अथॉरिटी की बात की गई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, एंड स्टेट गवर्नमेंट है, और हमारे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट भी वर्क करती है. सो 3 लेवल हैं, और तीनों के पास अपने अपने क्या हैं, जुरिडिक्शंस है ना. ये क्राइटेरिया है, लीगल अथॉरिटी सबके पास है कि किसके पास कितना पावर्स है और किस सब्जेक्ट पर उनका क्या रहता है, लीगल अथॉरिटी ज़्यादा रहता है. नाउ next topic is today we am explaining the what makes India a federal country. हमारी इंडिया को किस तरह से फेडरल कंट्री बनाया गया है, क्या क्या इसकी स्पेशल फीचर्स हैं. So let's start. We have earlier seen how small countries like Belgium, Sri Lanka face so many problems of the managing diversity. दोनों चैप्टर्स हमने बहुत अच्छे से किए, किस तरह से उन्हें मैनेज करनी पड़ी डाइवर्सिटी. व्हाट अबाउट द वास्ट कंट्रीज़ लाइक इंडिया. अब ये तो बहुत छोटी सी कंट्री थी, हमने किया था कि हरियाणा जैसा स्टेट है, जितनी पॉपुलेशन है, यानी एक छोटा सा स्टेट, उतनी कंट्रीज़ थी ये श्रीलंका और यूरोप, ये बेल्जियम की कंट्री. बट व्हाट अबाउट द इंडिया, जो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, यानी हरियाणा जैसे कितने स्टेट्स हो सकते हैं इंडिया में, जहाँ पे आबादी जो है हमारी 1 या 2 करोड़ नहीं है जैसी उनकी थी. यहाँ पे आबादी जो है 136 करोड़ आबादी हमारी चल रही है अभी. तो ऐसी कंट्रीज़ में हाउ द फेडरेशंस इज़ फॉलोड. सो विथ सो मैनी लैंग्वेजेस. अब सिर्फ वास्ट कंट्री ही नहीं है, एरिया वाइज लैंग्वेजेस, रिलीजियस रीजन्स. देखो लैंग्वेज भाषा हो गई, रिलीजियस हो गए, धर्म बहुत अलग अलग प्रैक्टिस किए जाते हैं. ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी रिलीजियस आते हैं वो सारे ही प्रैक्टिस किए जाते हैं. इंडिया इतना डाइवर्सिट कंट्री है. रीज़न होते एरिया. व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री. तो इस तरह की डाइवर्सिटी में क्या अरेंजमेंट किए गए हमारी कंट्री में पावर शेयरिंग के. इट्स अबाउट, लेट्स बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन. हम कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं. India had the emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. देखो जो हमारा पार्टीशन हुआ बहुत ही पेनफुल था. जब पेनफुल इसको इसलिए कहा गया है, ब्लडी इसलिए कहा गया है कि व्हेन इंडिया पाकिस्तान डिवाइडेड तो बहुत सारा वायलेंस हुआ था. यानी हमें इंडिपेंडेंट तो मिली थी, बट वो बहुत एक पेनफुल और एक ब्लडी पार्टीशन था हमारे लिए.
दोनों ही कंट्रीज़ के लिए। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकम अ पार्ट ऑफ कंट्री। अब प्रिंसली स्टेट थे जहाँ पे राजा वगैरह का रूल था, तो जल्दी ही वो सब किसका पार्ट बन गए, कंट्री का। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिक्लेयर किया, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी बहुत सारे स्टेट है जिसको मिला के क्या बनाया जा रहा है, इंडिया। कौन सा फेडरेशन आ रहा है यहाँ पे, होल्डिंग टुगेदर, ठीक है, रिमेंबर दिस, होल्डिंग टुगेदर, यहाँ पे फेडरेशन को हमने अप्लाई किया कॉन्स्टिट्यूशन में। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, यहाँ तक कि यहाँ पे किसी वर्ड का, जो फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म, बट यहाँ पे जो फेडरेशंस के प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे, उन्हें फॉलो किया गया। Let's go back the 7 features of the mention above. In previous lecture we have explained the 7 features. पढ़े हैं हमने. We can see that all these features apply to the provisions of the Indian Constitution. इसलिए फेडरेशन कहा गया है कि सारे ही जितने भी फीचर्स हैं वो अप्लाई होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रूव्ड फॉर द 2 tiers ऑफ सिस्टम. मेनली कितने लेवल होने चाहिए फेडरेशंस में, 2 लेवल. यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया. किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है. द स्टेट गवर्नमेंट, लेटर द 3rd tier ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपलिटी. ये 1992 के बाद कॉन्सेप्ट आएगा, जिसको हम आगे करेंगे. पहले जो प्रोविज़न तो था लोकल गवर्नमेंट का, बट पावर्स नहीं थे. पावर्स कब मिले, आफ्टर द 1992. तो यहाँ पे 2 tiers थे गवर्नमेंट के. फर्स्ट वाज यूनियन, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेकेंड वाज द स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड वाज द पंचायत. एज द फेडरेशन स्टेट डिफरेंट ईयर्स इंजॉय द सेपरेट जुरिडिकेशन. यहाँ पे सभी के पास क्या है, सेपरेट जुरिडिकेशन से, सारे लीगल अथॉरिटी सबके पास अलग है, विच गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. The Constitution clearly provide a threefold distribution of legislative power. यहाँ आपका क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान से देखेंगे, जिसके बारे में हम आज का लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. 3-fold distribution of the legislative power between the union government and state government. Thus contain these 3 lists. इसमें मोस्टली 3 लिस्ट आती हैं. वो कौन कौन सी लिस्ट है, फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट. चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने सारा कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं. तो फर्स्ट अबाउट द यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी. यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो मैंने यहाँ मेंशन किए, उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे. डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी. दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर थ्रू आउट द कंट्री. ये जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं किसके अंडर में रखे गए, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए होती है किसी भी कंट्री के लिए. वो तभी पॉसिबल है जब ये सारे जो मेन इम्पोर्टेंट टास्क है एक ही गवर्नमेंट करे पूरी कंट्री में. The union government alone can make law relating to the subjects mentioned in the union list. यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उस पर जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है अलोन कैन मेक लॉ, यानी कि उसके पास अकेले राइट है, उसे उसके लिए किसी की परमिशन, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो दीज क्राइटेरिया इज अंडर द यूनियन गवर्नमेंट. नाउ नेक्स्ट इज स्टेट लिस्ट. State list contain a subject of the state and local importance. अब जो भी सब्जेक्ट हैं जो स्टेट से रिलेटेड हैं, क्योंकि हर स्टेट की जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल और जो कल्चरल, लैंग्वेज, सब चीज़ें में बहुत डाइवर्सिटी है. तो ये वो सब्जेक्ट कवर करेगा जो पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है, सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. द स्टेट गवर्नमेंट, आगे देखते हैं, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट. ये पीछे आ गया है यहाँ पर. स्टेट लिस्ट आ गया है यहाँ पर. स्टेट लिस्ट के बाद हाँ यहाँ देखिए
इसको कंप्लीट नहीं करा। यहाँ पर फेडरेशन स्टेट लिस्ट, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है, कोई भी रूल कर सकती है। यहाँ पे बात कहें तो क्लियरली डिवीज़न है पावर्स का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ द फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ये कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर हो गया यूनियन लिस्ट, देन स्टेट लिस्ट, वेयर इज़ द कॉन्करेंट लिस्ट, आई थिंक देयर इज़ मिसिंग। को उसो के कोई बात नहीं। स्टेट लिस्ट जो है इसके हमने सब्जेक्ट यहाँ पे रीड आउट कर लिए हैं, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। सो इट इज स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक द लॉ इन दीज रिलेटेड इश्यूज इन द स्टेट। फाइन। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा जिसको कहते हैं, वो लॉ बना सकती है। और ऑल ओवर कंट्री में जो लॉ बनते हैं वो कौन बनाता है, पार्लियामेंट। नाउ नेक्स्ट सम लिस्ट, सम कुछ ऐसे होते हैं सब्जेक्ट जो दोनों के अंडर में आते हैं, उसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बारे में बात हो रही है, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट, जो दोनों के ही अंडर में है, ये किस में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में। गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट ऑफ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इज प्रिविलेज। यहाँ पर देखिए, अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता है कॉन्करेंट लिस्ट में कि स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट किसी चीज़ को लेकर एग्री नहीं है, तो किसके डिसीजंस को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट के डिसीजंस को, उसको वेटेज दिया जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी थ्री लिस्ट। अब ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं जो किसी लिस्ट में नहीं आ रहे, ना तो स्टेट में आ रहे, ना सेंट्रल लिस्ट में आ रहे, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में। सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया है, सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। ये कब आया सब्जेक्ट, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन में गया, उस वक्त तक ये सब्जेक्ट थे ही नहीं। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेटिव ऑन दीज रेज्यूडरी सब्जेक्ट। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द रेज्यूडरी सब्जेक्ट। तो रेज्यूडरी सब्जेक्ट कौन है, द सब्जेक्ट विच वर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ हु हैज़ पावर टू मेक द लॉ, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक द लॉ। So it's all about today. Today we have discussed about the threefold distribution of power. Fine. In which I have explained the union list, state list, concurrent list, and the residuary subject. So today's question related to the threefold distribution of power. I think it is clear to you. In next topic we will discuss about the language policy of the constitution, what the steps taken by the India to according to the लैंग्वेजेस, किस तरह से लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई, कॉन्सेप्ट जो था हमारा थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, रीड दिस सेक्शंस वेरी केयरफुली, थैंक यू।